Hello dear student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on my YouTube channel Power of Physics, where you learn the physics in simplest and easiest way. Now in today's class our topic is mass defect, nuclear binding energy and binding energy per nucleon. Then let's start. First of all we will discuss what is mass defect. मास डिफेक्ट क्या है? देखो, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब कोई भी एक मैंने न्यूक्लियस ले लिया, सपोज ये न्यूक्लियस मैंने ले लिया 8 ऑक्सीजन 16 का. Now, how many protons are in 8 oxygen 16? There are 8 protons. And how many neutrons are there? There are 8 neutrons. There are total 16 particles in the nucleus of oxygen atom. Now, जब 8 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसका एक्चुअल मास कैलकुलेट किया गया, फॉर एग्जांपल इसका एक्चुअल मास आया 15.9 AMU. दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 8 ऑक्सीजन 16. व्हाट इज 15.9 AMU? किससे मेजर कर सकते हैं? दिस मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. With the help of mass spectrometer we can measure the actual mass of a nucleus. Clear? ये हो गया उसका actual mass. अब देखो, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, then mass of proton in terms of AMU 1.00725 AMU and mass of neutron is equals to 1.00866 AMU. These we have discussed in our last lecture. This is the mass of proton, this is the mass of neutron. Now there are total 8 protons and 8 neutrons. Then what will be the total mass of nucleus with the help of this type of calculation? Let's calculate. Then total mass, if I calculate total mass of nucleons, then it will be 8 into 1.00725 and plus 8 into 1.00866. दिस इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस. अब देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूं, देन अगर आगे वाली टर्म्स को भी मैं एक बार छोड़ दूं, 8 तो यहीं आ रहा है, 8 यहीं पे ही आ रहा है, इट मींस 16 पॉइंट समथिंग होगा. क्लियर? ये हमने मास कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन. दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस. नाउ वी विल सी, सपोज ये आ गया 15.102325, कुछ भी ले लिया मैंने, AMU. अब ये तो हमने कैलकुलेशन से सॉल्व किया है, ये उसका एक्चुअल मास है. अब क्वेश्चन आया, इन दोनों में ये वेरिएशन क्यों है? इन दोनों मासेस में ये वेरिएशन क्यों है? और इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है, दैट्स वेरिएशन इज नोन एज मास डिफेक्ट. देन वी नो दैट सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is always greater than actual mass of that nuclei, and the difference between sum of masses of protons and neutrons and actual mass of nuclei is known as mass defect. Then what will be the mass defect? Mass defect is equals to sum of mass of protons and neutrons minus actual mass of nuclei. Now if I have to calculate the sum of masses of protons and neutrons, then suppose I have an element X, then Z is the atomic number of that element and A is the mass number of that particular element. Now if I ask you how many protons are there, Z, and how many neutrons are there, A minus Z. This is the number of protons and this is the number of neutrons. Now I have to calculate the sum of masses of protons and neutrons. Then if I denote mass of proton by MP and mass of neutron by Mn, then what will be value for this? This will be Z, number of protons are there, और एक प्रोटॉन का मास है MP. देन प्रोटॉन्स का मास तो हो गया इतना, न्यूट्रॉन्स का मास यदि आपको कैलकुलेट करना है, देन A minus Z Mn, this is the mass of neutrons. Then this is the sum of masses of nucleons of a nucleus minus actual mass of nuclei.
then if I denote actual mass of nuclei by capital M, then this will be the formula of mass defect, delta M. Clear? ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होगा. हमें क्या करना है, कोई भी जो एलिमेंट अपने को दिया जाएगा, सपोज वेदर इट इज नाइट्रोजन, वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर इट इज सोडियम, कोई भी एलिमेंट हमें दिया जाएगा, हमें उसका एक्चुअल मास दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि उसका मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो. देन मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे चलो एक एग्जांपल और ले लें, 11 सोडियम 23 हमें दे दिया, इसका एक्चुअल मास है वो 22.5023 है, AMU है. कैलकुलेट मास डिफेक्ट ऑफ 11 sodium 23. Then first of all you have to calculate number of protons and number of neutrons in sodium. Then as we know that number of protons in sodium is 11 and number of neutrons are 12. Clear? Now calculate the mass by the calculation. Same वही ले लेते हैं. सबसे पहले 11 प्रोटॉन है, then 11 into 1.00725. This is the mass of protons and how many neutrons are there? 12. Then 12 into 1.00866. इसको हमने सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, सपोज ये आया हमारे पास 23.7527 AMU, कुछ भी आया. Then this is the sum of masses of protons and neutrons present in nucleus. This is the actual mass of sodium. Now if I subtract the actual mass of this nucleus from this number, then I will get mass defect which is delta M. Clear? Now question arises here, ये मास किस में कन्वर्ट हुआ? कैलकुलेशन से इतना आ रहा है, एक्चुअल मास इतना है, तो ये मास गया कहां? अब देखो, अब चलते हैं अपन न्यूक्लियस पर. न्यूक्लियस, as we know that in nucleus there are protons and neutrons are present. There is positive charge on one proton. Second, मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, then there is also positive charge on this proton. Neutrons are neutral in nature. Then this proton will repel another proton. Suppose इतने सारे उसमें प्रोटॉन्स हैं, हमें पता है कि हर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है. अब दोनों प्रोटॉन्स की तो बनेगी नहीं आपस में, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा. चलो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन की तो आपस में नहीं बनेगी. तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो फिर वो न्यूक्लियस बाउंड स्टेट में कैसे रह सकता है, वो बंधा हुआ कैसे रह सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, चलो न्यूट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन ये न्यूक्लियस ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ये न्यूक्लियस टूटा क्यों नहीं? इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो इस न्यूक्लियस को बांध कर रखता है, जो इसको बाउंड करके रखता है. और वो कौन है? वो है न्यूक्लियर फोर्स. कौन है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स. एज वी नो दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स. तो एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपल्सन लगता है, लेकिन जितना एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, उससे कहीं ज्यादा वो उस दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो उसको अट्रैक्ट करता है. कहां? केवल न्यूक्लियस के अंदर. जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर की अपन बात करते हैं, जैसे ही हमारी रेंज 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाती है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट वो कम हो जाता है. न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली इन द सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियस. नाउ अब क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन समझ में आया कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, फिर भी न्यूक्लियस बंधा हुआ होता है. क्यों बंधा हुआ होता है? बिकॉज देयर इज ए फोर्स एक्टिंग in the nucleus, which is nuclear force. Nuclear force is a type of attractive force which can be act between proton proton, proton neutron and neutron neutron. एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और यही अट्रैक्शन फोर्स उस न्यूक्लियस को बांध के रखता है. अब इट मीन्स वहां पर एक फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स. किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की. किसी भी फोर्स को लगाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की. अब क्वेश्चन ये आया, वो एनर्जी इनको मिल कहां से रही है?
किसको? इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर फोर्स लगवाने के लिए वो एनर्जी इसको कहां से मिल रही है? दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, एज द नेम सजेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है। अब वो एनर्जी इनको मिली कहां से? मास डिफेक्ट से। As we know that the mass energy relation given by Albert Einstein, which is E is equals to mc square, हर एक मास में एनर्जी होती है। और ये जो मास डिफेक्ट आया था कि कैलकुलेशन से इतना आया, एक्चुअल मास इतना था, इन दोनों के बीच में जो मास का डिफरेंस आ रहा है वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में? बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है। क्यों बांध के रखती है? क्योंकि एक प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था, बट वो नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कौन से टाइप का होता है? अट्रैक्शन फोर्स है। किन किन के बीच में लगता है? इनके बीच में लगता है। ये इफेक्टिव होता है केवल और केवल किस में? न्यूक्लियस में। नाउ we will discuss what is binding energy. Next, binding energy. Nuclear binding energy. Nuclear binding energy is denoted by delta E. Then what will be the definition? किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? उसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है। किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है। मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, अब उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग अभी एट प्रेजेंट उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास अभी एट प्रेजेंट एनर्जी है -3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है। हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो न्यूक्लियस टूटेगा। और तब जाके वो न्यूक्लियस टूटेगा। तो ये कौन सी एनर्जी है? दिस एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहां से मिल रही है? मास डिफेक्ट से। वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। नाउ अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम है, देन व्हाट विल बी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा एम मास में कितनी एनर्जी हो सकती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। देन दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। Delta E is equals to delta M into C square. You can also write it as energy equivalent to mass defect. Mass defect के equivalent कितनी एनर्जी होती है? is known as nuclear binding energy. कि वो जो मास में कमी आई थी, उस मास में कमी जो आई थी वो सारी की सारी की कमी किस में कन्वर्ट हो गई थी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। नाउ डेल्टा E इज इक्वल्स टू, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा M हियर, देन इट विल बी Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट। और इतने मास में इतनी एनर्जी होगी। देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? इट इज डिनोटेड बाय बी बार। बी बार इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन A. इट मीन्स इफ यू हैव टू डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट मीन्स किसी एक न्यूक्लियन को उस न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग energy and mass number. It means if you have to calculate the binding energy per nucleon, you will
divide the mass number, sorry, you will divide the binding energy by mass number, then you will get the binding energy per nucleon. This is the formula for binding energy per nucleon. किसी भी एक न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए यानी न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है. नाउ एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं. तीनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सपोज 8 ऑक्सीजन 16, इसका एक्चुअल मास गिवन है, वही वैल्यू ले लेता हूं 15.9024 AMU. This is the actual mass of 8 oxygen 16. First of all, you have to calculate delta M, mass defect, and how will you calculate it? Delta M is equals to Z, mass of proton, plus A minus Z, mass of neutron, minus capital M. This is delta M. Put all the values here. Z is equals to 8, number of protons, into mass of proton 1.00725, plus A minus Z, value of A minus Z, 16 minus 8 is 8, into mass of neutron 866 minus capital M, and actual mass is given 15.9024. Solve this problem. 8 16 और 8 plus 8 अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट समथिंग. रफली मैं एक बार लिख दूं, सॉल्व कर लेना आप लोग इसको. सपोज ये आया 16.10751 माइनस 15.9024. आपको सोल्व करना है, मैंने तो ऐसे रफली लिख दिया इसको कि इस वैल्यू को अगर सोल्व करेंगे तो इतना आ गया. इसको इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया और ये आया सपोज 0.2043 AMU. सॉल्व कर लेना इसको, ये नहीं है कि मैं गलत कर, ऑब्वियसली बात मैं गलत ही कर रहा हूं क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा. इतना AMU आ गया. दिस इज द मास डिफेक्ट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा E. एंड व्हाट इज डेल्टा E? बाइंडिंग एनर्जी. एंड बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर. एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने AMU में कितनी एनर्जी होती है, उसके लिए आप जाइए लास्ट वाले लेक्चर में. एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 AMU. एक AMU के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी? दैट वाज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Then what will be the energy equivalent to this mass? It will be 0.2043 into 931.5 mega electron volt. This is the value of binding energy. Now you have to calculate binding energy per nucleon, and if for this, if you divide binding energy by the mass number, check what is the mass number of 8 oxygen 16? It is 16. Then B bar is equals to delta E upon A. What is the value of delta E? This one 0.2043 into 931.5 divided by 16 mega electron volt. ये तीनों टर्म्स थी, तीनों हमने सॉल्व कर ली. इस तरीके से बेस्ड पे न्यूमेरिकल आता है. ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ये शॉर्ट ट्रिक थी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया. इस मास डिफेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केजी में. देन टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1.6605 into 10 to the power minus 27 kg. This is mass defect in kilogram. Now calculate energy equivalent to this mass in joule. Then put the value of delta M here and put the value of C, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. देन यहां से आपको एनर्जी मिलेगी किसमें? जूल में. फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सिंपल ये ध्यान में रखो ना कि 1 AMU के इक्विवेलेंट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है. पुट द वैल्यूज हियर एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. देन हियर वी हैव डिस्कस्ड 3 थिंग्स. मास डिफेक्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and actual mass of nucleus. Second thing, binding energy, वो energy जो nucleus को bind करके रखती है. Next one, binding energy per nucleon. Now we will discuss a graph between mass number and binding energy per nucleon, and that graph will be like this. हम कर्व डिस्कस करते हैं किस किस के बीच में? B bar.
What is B bar here? Here B bar is the binding energy per nucleon. इसको हम मेजर करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. This is on y-axis. On x-axis, this is A, where A is the mass number. Then there are several values of mass number on x-axis, 20, 40, 60, up to 240, 260, 280. Now, same like this, there are several values of binding energy per nucleon in mega electron volt, which is 1, 2, 3, up to 9. अब हमें कर्व ड्रॉ करना है और इस कर्व में केवल एक चीज का ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज, जिसकी बी बार जितनी ज्यादा होगी, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. बस सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. और ये हाईएस्ट किसके लिए होती है? दिस इज हाईएस्ट फॉर 26 ferrous 56, where 26 is the atomic number of ferrous and 56 is the mass number, and which is 8.75 mega electron volt. Then in graph, first of all we have to mention this 8.75. Then mass number is 56. 56 is approximate here. Then above 56 and in front of 8.75 mega electron volt. This is the highest binding energy per nucleon. इसकी सबसे ज्यादा, इसके बाद वालों की अब धीरे धीरे डिक्रीज ही होनी है, धीरे धीरे कमी होनी है. सेम ऐसे ही इसके इधर वालों की भी धीरे धीरे है वो डिक्रीज ही होनी है. लेकिन फिर ऑक्सीजन की आती है तो ऑक्सीजन की लगभग अप्रोक्सीमेट 8 हो जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा वेरी करता है इस तरीके से, और इस तरीके से इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाती है. ये कर्व इस तरीके से ड्रॉ करना होता है. दिस इज हाईएस्ट, बस ये ध्यान में रखना है. हाईएस्ट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज फॉर 26 Fe56. अब इस कर्व से, कर्व इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इस कर्व से हमें क्या क्या कंक्लूजन है वो मिल रहा है उसके लिए देखें. सबसे पहली चीज, अप टू मास नंबर 56, इफ mass number increases then binding energy per nucleon will also increases. कि 56 तक देखो करूं मैं, 0 से लेकर 56 तक जैसे जैसे हमारा मास नंबर इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे बी बार की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है. इट मीन्स न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या होने जा रहा है? स्टेबल होता जा रहा है. कहां तक? 56 मास नंबर तक. उसके बाद एलिमेंट्स हैविंग मोर बी बार आर मोर स्टेबल, ये मैं आपको बता चुका हूं. जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी. थर्ड में, जिनके लिए मास नंबर की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 30 टू 170. वेयर इज 30? 30 इज अप्रोक्सीमेट हियर एंड वेयर इज 170 विच इज अप्रोक्सीमेट हियर. यहां से लेकर यहां तक आप देखिए, 30 से लेकर 170 तक के लिए इसकी वैल्यू है वो क्या है? ज्यादा है, विच इज अबव 8. अबव 8 अप्रोक्सीमेट अबव 8 है, यानी अबव 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इट मीन्स फ्रॉम 30 टू 170, जिनके लिए मास नंबर 30 से 170 के बीच में होता है उनके लिए बी बार की वैल्यू ज्यादा है, और जिसके लिए बी बार ज्यादा होगा उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. क्या मतलब हुआ इसका? स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं आपको फेरस का न्यूक्लियस तोड़ना है, ब्रेक करना है, देन कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ फेरस 56? देन कितनी एनर्जी चाहिए? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मेरे को ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ब्रेक करना है तो मेरे को अप्रोक्सीमेट बिलो 8 चाहिए, लगभग 8 के आसपास चाहिए. इसका मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है? फेरस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको जिसके न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है. जिसके लिए बी बार की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है. तो 30 से 170 वाले ज्यादा स्टेबल हैं. इसके बाद अबव मास नंबर 56, अगर मास नंबर 56 के ऊपर की बात करूं, इफ मास नंबर इंक्रीजेस देन बी बार विल डिक्रीज. जैसे ही आप 56 के बाद की बात करोगे, अब जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे देखो बी बार की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है. इसका मतलब 56 के बाद स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है. ये भी मैं बताऊंगा क्यों होने लग जाती है. अब कम क्यों होने लग जाती है? कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235. दिस इज यूरेनियम 92, 235. नाउ व्हाट इज द मास नंबर फॉर यूरेनियम? इट इज 235 विच इज ग्रेटर देन 170. इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है. दिस इज अनस्टेबल.
अनस्टेबल है और इसके साथ साथ ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। दिस इज ऑल्सो एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 92 एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूरेनियम 235? माइनस करो, 141 neutrons are there. Then in a nucleus of uranium there are 92 proton and 141 neutron. As we know that one proton will repel another proton due to electrostatic force. अब उसके न्यूक्लियस में ऑलरेडी 92 प्रोटॉन है। एक तो फोर्स लग रहा है केवल 2 प्रोटॉन्स के बीच में, एक फोर्स लग रहा है 92 प्रोटॉन्स के बीच में, रिपल्सन फोर्स। तो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस इजीली ब्रेक हो जाता है। और आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कि जैसे ही यूरेनियम के न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है।